Today on 17th of May 2025, I'm going to talk about where I am, what I've been doing, what good things happened with me, what bad things happened with me, what troubles me on daily basis, what I still wish to do in my life, and why I'm doing what I'm doing. And basically where I am. So I'm in Pune for almost 2 months now. Before that, I was in Kumbh plus Delhi plus Ajmer for almost a month. And before that, I was again in Pune from November 2024 to January 2025. So almost like for 6 months, I'm in Pune. Where exactly I'm in Pune, you can get to know that if you WhatsApp on 8355909692. Then you'll be in my mental space, my attention span, and you'll be considered a part of my tribe, that is Superior Society, which is essentially a community of individuals, real or virtual community of individuals who intend to work together on their five consciousness, which are health consciousness, wealth consciousness, spiritual consciousness, communication consciousness, and political consciousness. So that is one thing where I am. So almost for 6 months I'm here. What I'm doing, several things, several, मतलब एक एक महीने की रिपोर्ट बनाने जाए तो कई घंटों लग जाएंगे. प्रोजेक्ट है. तो मुख्य रूप से देखें तो प्रोजेक्ट 1CR 2025 आई बिगेन इन जनवरी 2025, आफ्टर विच IIT बाबा पॉप्ड अप. तो वो सब हैंडल करना पड़ा. एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव, not just by me but everyone who was there around me. Excellent drill, excellent marketing exercise. ये आपकी आ जाएगी कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज में. फिनेंस उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बट चूंकि वो आपका ओवरऑल सोशल मीडिया ग्रिल करता है, तो आपका फाइनेंशियल एक्सरसाइज भी कम्युनिकेशन के साथ में वेल्थ कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज ऑल्सो वाज दैट. IIT बाबा के समय जो हमने किया, सीनियर IIT बाबा थे. और अभी न्यूरो जिम शुरू हो गया इन अप्रैल 2025. फ्रॉम 1st of April 2025 वी बिगेन न्यूरो जिम. So it's almost like 17th of May, 47 days. So almost like for 50 days I'm in Pune. Now why I'm in Pune? There's a very deep and very serious, very divine and sacred reason behind it. And it has certainly got nothing to do with Rajneesh or Osho. Of course, I'm wearing this dress of Rajneesh and I'm proud of it. And I always love to market myself, an aspect of myself, as an Osho sannyasi, as a new sannyasi. So this Osho resort visit also I did in November 2024. Project 2025 1CR, then Neuro Gym, meeting kids, parenting, so many things. तो मैं बता रहा था आपको कि पुणे में रहने का कारण क्या है. पुणे में रहने के बहुत सारे कारणों को मिलाकर एक मुख्य कारण बनता है. वो जो कारण है, ये टोटलिटी में उसका नाम नहीं दिया जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. बस इतना कहा जा सकता है कि वो दिव्य है, डिवाइन है, सेक्रेड है और फुलेस्ट अभिव्यक्ति से है. 40,000 न्यूरॉन्स ऑफ हार्ट द्वारा स्वीकृत है. 40,000 न्यूरॉन्स ऑफ हार्ट. क्योंकि 9 सालों में हम जहां जहां भी गए हैं, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी से हम जहां जहां भी गए हैं, more than 20 cities I visited in past 9 years. कसौली, चंडीगढ़, शिमला, मोहाली, उत्तरकाशी, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, शाजापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, उड़ीसा, भुवनेश्वर, ग्वालियर, इंदौर, राजसमंद, उदयपुर, सूरत, वडोदरा, नवसारी, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नासिक. साउथ में आपका हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई, चेन्नई, कन्याकुमारी,
So many places I visited. So every time I was visiting from point A to point B, there was a very specific reason, a very intense force that was pushing me away from point A, and there was a force that was pulling me towards point B, at least in that moment. And since I've been an honest and authentic man without worrying about job or expenses or financial security or any kind of security, survival security, food and travel and expense, all that kind of security, without any that kind of insecurity, I just traveled from point A to point B. मुझे बैलगाड़ी में जाना हो, लिफ्ट लेके जाना हो, कार में जाना हो, ऊबर में जाना हो, टैक्सी में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, प्लेन में जाना हो, जितना पैसा है, जितने रिसोर्सेज है, करना है तो करना ही है. मतलब इतना ज्यादा फोर्स पॉइंट ए से पुश करता हुआ और पॉइंट बी से अट्रैक्ट करता हुआ. सो दैट काइंड ऑफ फोर्स आई हैव नॉट बीन फीलिंग फॉर पास्ट 6-7 months while being in Pune. This is one reason. Another reason is that either I can say I never grew up, or I should say I never lost my child spirit. So it is not that this year in July I'm going to turn 38. That means I've grown up. If growing up means disconnecting with your childhood, then I've never grown up and I do not wish to grow up. But if someone who is connected with the child spirit, what does that mean? What does that mean? Staying connected with your childhood. Staying connected with your childhood on yearly basis or monthly basis or weekly basis or daily basis or in the real freaking time. In the real time, if you are connected with your childhood, then तो चाइल्डहुड में बचपन में फिल्में देखते थे, शाहरुख खान की, सलमान खान की, संजय दत्त की, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जहर फिल्म आई थी, इश्क विश्क प्यार व्यार, आई बिलीव इन लव लव, यू बिलीव इन लव लव, दुनिया में होता है मुश्किलों से प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, आंखों में कर लो तुम नखरेचा, जिंदगी में होता है सबको एक बार, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार. तो इश्क विश्क प्यार व्यार फिल्म देखी, रहना है तेरे दिल में फिल्म देखी, और ना उस फिल्म को सिर्फ जीना है, ना सिर्फ उस फिल्म को जीना है, मुझे उसी जुहू बीच पे जाना है. वैसी लड़की नहीं तो किसी और लड़की को लेके, और लड़की नहीं तो खुद ही मुझे जाना है, एक बार करके देखना है. मैं आपको बता रहा हूं ये कितनी बचकानी हरकत है. ये ठीक वैसी हरकत है जब हम 2nd क्लास में थे सेंट थॉमस स्कूल में, तो क्लास से निकलकर कंप्यूटर रूम में जाते थे. कंप्यूटर रूम के अंदर कंप्यूटर मैडम मिलती थी, बहुत कुछ गेम वगैरह कराती थी. तो रास्ते में एक बड़ी सी दीवार पड़ती थी, स्कूल की दीवार, और स्कूल की दीवार के पार स्कूल के बाहर की दुनिया थी. तो वहां से कुछ आवाजें आती थी, कुछ लोगों के बात करने की, कुछ चाय वगैरह पीने की, लोग चाय की दुकान पे कुछ बातचीत कर रहे हैं, या कुछ साइकिल है, कुछ हॉर्न आ रहा है, तो लगता था उसके पार भी कुछ दुनिया है. तो मेरा देखने का मन करता था कि उसके पार क्या है. और अब यकीन नहीं करेंगे भाई साहब, ये जो तमन्ना थी ना सेंट थॉमस स्कूल की, उस दीवार के पार क्या है, वो देखने की तमन्ना हमारी पूरी हुई अक्टूबर 2023 में. आप यकीन करेंगे, आप यकीन करेंगे, वो जो मेरा सपना था और मेरा अपना था, और वही मेरा अपना था, उसके अलावा कोई मेरा अपना नहीं है. मेरा सपना ही मेरा अपना है, तो मैंने उस सपने को प्रोटेक्टेड रखा. अभी वो गहरा लेक्चर हो जाएगा कि वो कैसे वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगी. मतलब मजाक थोड़ी ना, स्कूल में घुस जाऊंगा बड़ा हितेश शाक्य बन के, बोलूंगा कि मुझे वो देखना दीवार के पार क्या है,
बोले भाई कैसे मतलब उसके पीछे एक आयोजन होना आवश्यक था, वो आयोजन हुआ हमारी जिंदगी में क्योंकि हमने उस सपने को पकड़ के रखा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली टॉपिक क्या चल रहा है कि पुणे में हम क्यों हैं। तो 2004 में 5 में उसके पहले मुन्ना भाई आई, इश्क विश्क फिल्म आई, और उसके पहले अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, फिर तेरी कहानी याद आई, तेरे दर पर सनम चले आए, मुंबई से पूना का सफर, भेजा फ्राई। तो ये मुंबई क्या है, मतलब इसको मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा दिव्य सपना है किसी इंसान का, उसका ड्रीम है, लेकिन इसमें दिव्यता इस कारण से है कि ये बचपन का है, एक बच्चे की चाइल्ड स्पिरिट का है। तो क्या वो बच्चा अब्यूज्ड है? हाँ, बच्चा तो अब्यूज्ड है। तो आइडियली वो बच्चे का क्या करना चाहिए था, वो तो सुपीरियर वंश का था ना, हितेश के तो सुपीरियर वंश के बच्चे थे। तो ऐसे सुपीरियर वंश के बच्चे को कोई सुपीरियर वंश ढूंढ के उसके बीच में रख देना चाहिए था। बिफोर आई टर्न्ड 4 मुझे एक जर्मन स्पीकर, एक स्पेनिश स्पीकर, एक फ्रेंच स्पीकर, एक इटालियन स्पीकर, एक संस्कृत स्पीकर, एक मराठी स्पीकर, एक पंजाबी स्पीकर, एक तबला वादक, एक गिटार वादक, एक पियानो वादक, एक गायक, एक साइंटिस्ट, एक ऑफिसर, एक प्रधानमंत्री लेवल का या एमपी या जो भी इस प्रकार के सभी प्रकार के जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सुपीरियर लोगों के बीच में उठना बैठना अगर होता मेरा 4 साल की उम्र में, जिसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला था। अरे दुनिया में तो मेरे जैसे जिन लोगों को अटेंशन नहीं मिला, जिन लोगों को मान सम्मान रिकॉग्निशन नहीं मिला, गली गली के अंदर मेरे जैसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। मां बाप का तो काम ही कुछ नहीं है। मां बाप का मैं आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, सीसीटीवी की तरह बैठे रहना। जिस कुर्सी पर आपका विवाह समारोह संपन्न हुआ था, लेफ्ट और राइट में आप बैठे हुए थे, लेफ्ट राइट में एक दूसरे के, बस वैसे ही लेफ्ट राइट में बैठ जाओ, ज्यादा से ज्यादा स्वैप कर लो बस। अब यहां से आप बच्चे को देखते रहो, कुछ उठने की भी जरूरत नहीं है, और आप वहां से मुंह चलाते रहो कि मेरा बच्चा हो गया। अब जो लोग खाना खाने आते हैं ना, वैसे अब ये मेरा बच्चा भी हो गया, अब इसको संभालने के लिए कौन आ सकता है, तो देखना आप आवाज तो लगाओ। अब यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, नेटवर्क में, मीडिया चैनल पे चिल्लाओ, तो से लोगों को आमंत्रित तो करो। दुनिया में बच्चे को प्यार करने वाले, बच्चे की सेवा करने वाले, उसको अंग्रेजी सिखाने वाले, उसको सेल्फ डिफेंस सिखाने वाले, उसको व्यायाम कराने वाले, प्राणायाम कराने वाले, रूबिक क्यूब सॉल्व कराने वाले, जर्मन जापानी सब सिखाने वाले, फ्री में सिखाने वाले, कविताएं सिखाने वाले, लिखना पढ़ना, अरे सब कुछ, पैसा कमाना, दुनियादारी, सब कुछ सिखाने वाले, फ्री में सिखाने वाले क्रांतिकारी बहुत भरे पड़े हैं। और जितने भी मैंने क्रांतिकारी टाइप बताया वो सारे सम्मिलित होकर मेरे पिताजी के अंदर थे। और मेरे पिताजी को भी मेरी मम्मी ने वो स्वीकृति नहीं दी कि चलो तुमसे बीवी नहीं संभल रही, परिवार नहीं संभल रहा, एक विद्वान बन के, सम्मान से एक शिक्षक बन के इस बच्चे या जो अपने बच्चे उनके पास वापस आ जाओ और इनको ट्रेन करो, जैसे तुम बाकी बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, हमारे बच्चों को भी ट्रेन करो, मेरे बच्चों को ट्रेन करो। चलो तुम्हारे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं, और तुम्हारे साथ जो भी मेरा फाइनेंशियल या लीगल बैटल है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप विद्वान हो, इस बात का सम्मान तो होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कोई सुपीरियर पेरेंटिंग थी नहीं मेरी, सुपीरियर वंशी था, सुपीरियर वंशियों के बीच में मुझे रख देना चाहिए था। तो किसके बीच में रख दिया? टीवी के बीच में रख दिया, अमिताभ बच्चन रख दिया, मेरे सामने शाहरुख खान रख दिया। ठीक 1995 की बात है, आई वॉज 8 ईयर्स, ठीक 30 साल पहले की बात है। तो थिएटर का नाम था मैजेस्टिक। मैजेस्टिक में मम्मी, मतलब थिएटर के नाम, एक तो थिएटर के ऊपर बड़ा सा फिल्म का पोस्टर लग रहा, 1995 की बात है। मेरी जिंदगी का पहली बार मैं 8 साल की उम्र में थिएटर जा रहा हूं। उस इतने बड़े पोस्टर पे एक आदमी है यार, अबे उस आदमी का पूरा चेहरा आप समझ रहे हो, मतलब मेरे ऐसे खड़े हो तो 6 बन जाएं, इतनी ऊंचा। तो वो पोस्टर, उस पोस्टर के ऊपर एक आदमी का चेहरा और एक लड़की का चेहरा, वो दोनों पास में